Okay. So let's take a question. CA Foundation, June 2023. CAFC June attempt. A good question. A, B, and C are the partners sharing profits and losses in the ratio of 4:3:3, and the balances of the in the books of the firm as on 31st of December 2022, subject to the final adjustments, were as under. The capital amounts will be going in the partner's capital account. We are making a separate account for that. We have a current account also, and this time we have a current account का debit balance. So if you want to know that what is the net capital balance, we just need to subtract. Okay. For 225 minus this will give you the net capital balance. Land and building asset, furniture and fixtures asset, stock asset. Asset. Profit for the year before charging interest. I don't know what interest they're talking about, but I believe they must be talking about interest on capital. Yes. So this will be very important for us when we'll be doing the calculations for goodwill. Because we do not take amount before charging interest, we'll take the amount after charging interest. Yes. और कैसे करना है बताता हूँ मैं आपको. Creditors है 67,500 liability. Sorted? Yes, sir. Goodwill may be recorded separately instead of through revaluation account. Okay. C died on 30th of June. My year ending is 31st of December. So my years ka beginning would be January. 1st January to 31st of December. Yes. Yes. He died on 30th of June. So did he work for January, February, March, April, May, June? Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So he worked in my business for how many months? 6 months. Bouncer. May. Too good. The partnership deed provides you the following information. Interest was credited on the capital accounts of the partners at 12% per annum. Okay. On the balance at the beginning of the year, जो भी balance at the beginning of the year था, that is 2,25,000, 1,12,500. but sir, we will be giving interest 2,25,000 to A for 12%. Perfect. Correct. 1,12,500 into 12%. But 1,35,000 into 12%. क्या बात है सर. Too good sir. On the date of death. क्या हुआ? Goodwill was valued at 3 years purchase of an average annual profits of the last 3 years. Up to the date of death, sir. क्या बोल रहे हैं मालूम है? कि हम लोग गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं, बिंदास कर रहे हैं, टेंशन नहीं है. बट माय गुडविल का डेट का कैलकुलेशन विल स्टार्ट फ्रॉम 30th of June से 3 साल. नहीं समझा? So if he is dead in the year 2022, so 2022 में अगर प्रॉफिट 100 रुपया है ना, तो मैं 6 मंथ्स का प्रॉफिट लूंगा, दैट इज 50. नहीं समझा? फिर 23 का तो फुल ईयर समझो 100 रुपये प्रॉफिट है, तो इसका पूरा 100 रुपया आएगा. फिर 23 नहीं है ना, 21 होगा. फिर 20 का प्रॉफिट है समझो 100 है, इसका फुल ईयर का 100 आएगा. नहीं समझा? बट 2019 जो है ना, अगर उसमें 100 रुपीज है तो उसका मैं फिर से 6 मंथ्स लूंगा. नहीं समझा? 3 साल करना है ना, 3 साल करना है ना. 1 year, 2 year, 3 years. नहीं समझा? The calculation na will be 3 years from the date of the death of a partner, not from the मतलब यहाँ पे इंफॉर्मेशन 4 साल का लेना पड़ेगा, बट 6 मंथ का स्प्लिट करके. ब्यूटीफुल है सर, ये मस्त है क्वेश्चन.
आफ्टर डिडक्टिंग कर लेंगे डिडक्ट यार, क्या टेंशन है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, नया बात कर रहा है अभी, ऑन कैपिटल Employed. at 10% per annum and the fair remuneration for each of the partners. ठीक है, मतलब कि इंटरेस्ट भी माइनस करना है एंड फेयर रेम्यूनरेशन भी. आई डू नॉट नो द फेयर रेम्यूनरेशन एज ऑफ नाउ, आगे शायद देगा. बट गुडविल में से सबसे पहला जो भी अमाउंट होगा उसमें से हम लोग क्या लेस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस फेयर रेम्यूनरेशन. जो भी अमाउंट आएगा वो गुडविल का अमाउंट होगा, मतलब एवरेज प्रॉफिट्स एंड गुडविल का अमाउंट होगा. यू अंडरस्टैंड दैट? Fixed assets were to be valued by independent valuer and all the other assets and liability to be taken at book value. ये भी बहुत बेसिक हो गया. अभी तक अमाउंट तो नहीं दिया है बट बेसिक इन्फॉर्मेशन. Okay. There will be a change in the fixed assets. And who's doing it? Independent value. For the past 3 years बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट का अमाउंट दे दिया है. मतलब क्या करना पड़ेगा, इन सब में से पहले इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा, फेयर रेम्यूनरेशन माइनस करना पड़ेगा. कर लेंगे ना हम लोग, है ना, कर लेंगे. एज ऑफ नाउ इसको साइड में रखो. चलो, द इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन वाले ने क्या बोला है, दैट लैंड बिल्डिंग का इतना है, फर्नीचर का इतना है. एम आई हैविंग अ प्रॉफिट और लॉस, आई डोंट नो, बट आई विल बी पुटिंग अ टिक मार्क ओवर हियर. किस पे? इन दोनों पे. Okay. The valuation of the goodwill for the for valuation of goodwill, a fair remuneration of each of the partner, bhai, was taken how much? 56 to 50. So will it be multiplied by 3 Yes. for the all partners? हाँ. तो जो भी प्रॉफिट होगा ना उसमें से अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख के आसपास कम करना पड़ेगा. श्योर है? एंड द कैपिटल एम्प्लॉयड ऑल्सो गिवन एस, क्या टाइम पास है, इधर ही देता साथ साथ में. These two are interlinked, but it will be useful only for the calculation of goodwill, तो ऐसा nothing else. थोड़ा यहाँ वहां करके दिया उसने, यहाँ वहाँ करके दिया. बस और कुछ भी नहीं. It was agreed between the parties that goodwill is to be not shown as an asset, मतलब कि raise and write off करना है, gaining partner capital account debit to sacrificing partner capital. On 31st of December, therefore the adjustment of goodwill was to be made in capital accounts. Okay, the amount due to C का estate, मतलब executor estate, whatever you want, was to remain as a loan with the firm carrying an interest at 12%. सर वो जून में ही मर गया है, दिसंबर तक कोई पेमेंट दिया नहीं है. कैन आई से 6 months का पैसा फर्म इस्तेमाल कर रहा है, फॉर्म इस्तेमाल कर. तो फर्म इज गोइंग टू गिव इंटरेस्ट एट व्हाट परसेंट? 12%. नहीं, पर 6%. वेरी गुड. 12% पर है ना, तो 6% 6 महीने. पर मंथ, तो 6 महीने के लिए था वो. हाँ. को टेंशन नहीं लेगा, जो भी अमाउंट आएगा ना एक्स एक्स मल्टीप्लाई बाई 12 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 6 अपॉन 12. आगे बढ़े. Yes. A and B would share profits and losses equally. Can I say I do know the old ratio? Yes. I do know the new ratio. New ratio. So I'll have to find sacrificing ratio also, because gaining ratio also, because goodwill divide करना है. हाँ. ये पूरा गेम है ना, ये वाले चैप्टर, ये वाले क्वेश्चन का गुडविल पे खेल है. If you are able to track down the value of goodwill, the question is a cake piece for you. कुछ भी नया नहीं है इसमें, सिर्फ गुडविल का कैलकुलेशन छोड़ के. हैव अ लुक एट दिस, कैसे कर रहा हूं मैं. डेप्रिशिएशन ऑन द रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ द एसेट वुड बी इग्नोर्ड. हाँ ठीक है, इग्नोर कर देंगे हम लोग, यार साल खत्म हो रहा है ना. मेमोरेंडम बना पड़ेगा. ना 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 ना, you are required to prepare capital account and current account, balance sheet बना दिया, and working note should be forming to be part of your answer and it should be nearest to the रुपया. अगर कुछ है तो राउंड ऑफ कर देने का. नहीं समझे? समझा. चलो सॉल्व करते हैं. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पोस्टिंग कर लेते. कैपिटल कितना बैलेंस है? 2,25,000, 1,12,000 एंड 135.
कैपिटल बैलेंस बोला ना आपने सर मुझे? हाँ 2,25,000 2,25,000 1,12,500 और 1,35,000. Okay. Then Then current account. is it A, B, and C? Yes. Current account में we have a balance on the asset side. Correct. A का बैलेंस कितने बची? 36,000, 54,000 and 54,000. नहीं समझा. Yes. Next. फिर इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग है 1,80,000. आ जाएगा वो. वो बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा. Do you have adjustment on that? Yes. What is the amount of land building? 2,25,000. नहीं नहीं पहले उसका वैल्यू है 1,80,000. इट इज रीवैल्यूड एट 2,25,000. मुझे अभी उसका खाली 1,83 का. Then फर्नीचर एंड फिक्चर्स 33,750. कितना? 33,750. It is revalued at 22,500. सर एडजस्टमेंट जब भी आएगा तभी करेंगे, अभी कोई झम नहीं मारना मुझे. नेक्स्ट. रिगार्डिंग नहीं, फिर स्टॉक आता है. अमाउंट. स्टॉक 2,81,250. नेक्स्ट. Creditors 45,000. नेक्स्ट. Profit for the year before charging interest 2,34,000. Can I say this profit will be divided amongst the partners? Yes. But we will have to open an pre-annual appropriation account. कितना बोले आपने मुझे? 2,34,000. है ना? बट यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मालूम है ब्रो? I'll have to prepare it in a columnar form. You know why? Because one partner is dead. तो जब भी 6 महीने का आप अकाउंट बनाओगे तो 6 महीने में ही विल गेट द प्रॉफिट्स, द डिसीज पार्टनर, बट इन द रिमेनिंग 6 मंथ उसको प्रॉफिट मिलेगा. एंड दिस प्रॉफिट कैन बी डिवाइडेड. रिमेनिंग पीरियड इज इट 1,17,000? Yes. कैसे किया मैंने? 1,17,000 आपने इक्वली डिवाइड किया. नो 234 को डिवाइड किया. हाँ 234 को डिवाइड किया इक्वली. श्योर है? नेक्स्ट. फिर क्रेडिटर्स कहाँ जाएगा सर ये क्रेडिटर्स? ये बैलेंस शीट लायबिलिटीज. अमाउंट 67,500. एनी एडजस्टमेंट? नो. नहीं. नेक्स्ट. Regarding goodwill may be made separately instead of through revaluation accounts. ठीक है ना, वो कर लेंगे हम लोग. नाउ सी इज आल्सो नाउ वी हैव टू क्रेडिट द इंटरेस्ट ना टू द पार्टनर्स. Exactly. हाँ. हाउ मच इज दैट? 12% 12% ऑन द ओपनिंग बैलेंस 2,25,000. yes. है ना? Plus capital चलो करते हैं. जाएगा उसके बाद सो विल आई राइट इट ओवर हियर टिल आई राइट इट प्रॉपर्ली. P&L appropriation. जून टू जैन टू जून एंड जून टू दिसंबर. करेक्ट ना? इसी को कट पेस्ट कर दें यहाँ पे. देखो ये इतना गुस्सा आती है ना मेरे को जब ऐसा होता है. मैं काम करो तो खेलना है. पक्का? So now what I'm going to do is I will be dividing the
interest, right? So Yes. 2 interest on capital. Do you agree with me? Yes. फर्स्ट आप ए को बोलोगे कि ए को कितना पैसा मिलने वाला, 12% मिलने वाला है. 12%. If I am not wrong, the capital of A is 2,25,000. Yes. So 2,25,000 multiply by 12%. You get the answer as 27,000. 27 का हाफ ले लेंगे. हाँ, क्योंकि ये अपना 6 months के लिए. वेरी गुड सर. बी का कितना है? बी का है 1,12,500. तो उसका आधा ही है सर. सर उसका आधा है ना यार, 1,12,000. हाँ. तो क्या करने का, इसका जो भी आंसर है उसका भी आधा कर देने का. सर उसके लिए कैलसी क्यों लग रहा है तुमको, नहीं समझा? हाँ. है ना सर, कैलसी के लिए ना इतना. सी का कितना अमाउंट है? ये किसी का आधा नहीं है सर, ये 135 करना पड़ेगा. 8,100. और यहाँ पे कितना लिखूं? 8,100. नॉनसेंस, लिखूंगा ही नहीं यहाँ पे मैं. अरे हाँ, बराबर 6 महीने के बाद. क्या बात है सर. गुड मॉर्निंग तरमक. यू अंडरस्टैंड दैट? हाँ. सर बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा ये क्वेश्चन करने के टाइम पे, तो वैसे भी लेंदी है वो, है ना. एंड जरा सा मिस्टेक अगर पूरा पूरा क्वेश्चन गया, 2 इफेक्ट्स देना है मेरे को. अगर ऐसा क्वेश्चन सीए फाउंडेशन में आ गया, ये आया ये क्वेश्चन, मतलब लाइक मेरे एग्जाम में आ गया, तो हाउ कैन आई मैनेज माय टाइम? सर यू विल बी एबल टू मैनेज योर टाइम. इट इज जस्ट दैट यू नीड टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एंड राइट फास्ट. There have been students who are able to complete it. So if they can, you can. 27? 35,000. काय का 13,500 ना. हाँ, 13,500. 8100. वो सेल्फ डाउट करना बंद कर दो सर. आप पहले तो आप कर सकते हो. आपने अगर 10th क्लियर किया है तो ये भी क्लियर करोगे, एंड यू आर इन योर 80s. अभी सोचना है अपने को कि वी शुड बी इन अवर 90s इन 12th. वी शुड बी अ रैंकर इन सीए फाउंडेशन. तो वो आपका एम रखो, क्योंकि आपके पास में वो मेहनत करने की काबिलियत है. आप कंटाल नहीं रहे हो. सर सुबह सुबह हम लोग बैठ गए लेक्चर में पढ़ने के लिए, नॉट सो इट्स अ वेरी कमेंडेबल थिंग सर. तो अपने आपको डाउट मत रखो, अपने आपको डाउट मत किया करो, क्योंकि आप अपने डाउट करते हो तो अल्टीमेटली मेरे पे डाउट आता है कि टकला पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया. पढ़ाएगा ब्रो, टेंशन नहीं, अपन है यहाँ पर. बस खाली आप वही करते हो जो हम लोग को करना चाहिए, एंड यू विल बी आराम से गेट गुड मार्क्स. खैर आगे बढ़ते हैं. गुडविल इज टू बी टेकन 3 years परचेज ऑफ दी एंड 10% है. तो पहले सर हम लोग पहले है ना, हमारा वही जो करते थे पहले, तो वर्किंग नोट नंबर 1, व्हाट इज दैट? PSR, No, profit sharing ratio. profit sharing ratio. We have to find out the gaining ratio. What is the new ratio? The new ratio. Again, 1:1 ना ब्रो. अरे दिलंय ना इकडे, हे बघ. दे दिया. अरे सांगितलं तुला लास्ट मध्ये, सांगितलं that the profit and losses will be shared equally. Oh, okay. Third वाला adjustment. Half. The old ratio is 4:3:3. Do you understand this? Yes. Is it 4/10, 3/10? And 3. आता क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर दूँ, 1/2 into 5 into 5, so it will be 5/10. 5/10 and 5 minus 4. तो 5/10, 1/10 हो जाएगा. तो ये 5/10 हो गया, माइनस 4/10. हटाओ इसको, 10 को हटाओ, क्या बचा? 5 and 1. 1. नहीं समझा? Yes. 1/10. Is this gaining? Yes. Very good. The gaining part now. Now 3/1/2, इसको मल्टीप्लाई करूँ, हाँ. वो मल्टीप्लाई 5, 5. तो फिर से 5 आ गया, बराबर ना. हाँ. तो 5/10 minus 3. minus 3/10. So 5 minus 3 is 2, right? तो इसको आप सब्ट्रैक्ट करो तो आंसर आएगा 1:2. एंड 0 minus 3 तो ये माइनस Minus 3/10.
So he is the one who is sacrificing because he's going out. Yes. These two are what? ये नहीं. Difficulty. So the ratio is 1:2, and the journal entry will be A account debit, B account debit, C account, C account. because A and B are gaining and C is the one who is sacrificing. Sacrifice. पक्का? Yes. जबरदस्त. अभी गुडविल का अमाउंट पहले फाइन करना पड़ेगा. जर्नल एंट्री तो लिख दिया हम लोग ने. चलो अभी गुडविल फाइन करते हैं. कैलकुलेशन ऑफ गुडविल. सबसे पहले तो एवरेज प्रॉफिट. बराबर है. Yes. कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे करोगे आप सर? टेकिंग द प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 3 years. क्वेश्चन कुठे गेला? And they're telling me that the average profit has been taken for the last 3 years up to the date of death. Okay. So first 2022, because that is the year, ना. And कितना था हमारे पास में? 2,30,000, 4,000. but 2,34,000 was for the full year. Yes. हम लोग को हाफ ईयर का चाहिए because he was not there in the latter half. यहाँ पे लिखूँ मैं 1st January to 30th June. तो फिर 2,34,000 divided by 2 हो जाएगा. So 1,17,000. perfect. इन दोनों का फुल अमाउंट आएगा. ये कौन सा ईयर था सर? 2022 राइट? ये 2022 था. अभी 21 लेंगे. 2021 का फुल अमाउंट आएगा 1st January to 31st 31st December. December. इसका कितना अमाउंट है? 2,70,000, 2,34,000, 283,500. 83,500. इकडे ना हाँ 2,83,500. 83,500. नहीं पहले क्या था? पहले 2,70,000. नाउ अगेन नहीं समझा. नाउ दिस बिकम्स 6 months. दिस इज 12 months. Yes. अगेन 6 months. क्या होगा? 1st of January से लगा करके, नहीं 1st January से नहीं ना, इट विल बी 30th June. 1st July to 31st December. परफेक्ट. 31st December 2019. नहीं समझा. समझो. 1 year, 2 year, 3 years. टोटल अमाउंट कितना था? 26,000. अमाउंट बता रहे आप मुझे आंसर. हाँ नहीं समझा. Just for your understanding, 2,52,000. Now we'll take the average. Directly average ले लो. तो कुछ शॉर्टकट बताता हूँ मैं. Can you add this up? कैलसी लीजिए. 1,17,000 plus 2,70,000 plus 1,17,000 plus 2,70,000 plus 2,83,500 plus 1,26,000. 1,26,000. 7,96,500. डिवाइड बाय 3 years कितना आ रहा है? 26,500. हैं?
65,500. गुड. 2 lakh. 2 lakh, 65,500. Now from this you are going to subtract two things. One is the fair remuneration. बरोबर ना? And you are going to subtract interest on Interest on capital employed, which they have interest on given in the capital. question. बरोबर सर? Okay. ये दो मुझे याद था. आई होप उसके अलावा और कुछ भी नहीं है. हाँ, after the interest on capital and the fair remuneration. What is the fair remuneration, Bajji? 56 to 50. 56 to 50. And the capital employed is 5 lakh 85. Okay. Bajji, 56 to 50 is for per partner. Yes. There are 3 partners. Yes. Can you get me the answer? 1 lakh 68,750. Interest on capital. Am I trying to tell you that 5 lakh 85,000 अगर capital employed है तो उस पे 10% 10% is going to be 58? 58,500. नहीं समझा. पक्का? पक्का. Subtract करो. 2 lakh 65,500 minus 1 lakh 68,750 minus 58,500. 38 to 50. 38. 250. You know what is this? Average profit. You'll multiply it with the number of years purchase. नहीं 1 lakh 14,750. नहीं I'll समझा just आपको. check it again though. अबे 2 lakh 65,000 minus 168,750. 2 lakh 65,500 minus हाँ minus 168,750 168,750 minus 58,500 minus 58,500. 38 into to 2 50 into 3. into 3. 1 lakh 14,750. This is going to be your goodwill हाँ. of the whole firm. Correct? C का शेयर कितना है? 3/10. That is 1,14,750 multiplied by 3 upon 10. That is how much? 34,425. नहीं समझे. And this is divided between A and B in the ratio of 1:2 that is 1 upon 3. and 2 upon 3. करो divide by 3 करो. Direct divide by 3 करो. हाँ 11,475. 11,475 का डबल 22,950. नहीं समझे. So what is the journal entry? A capital debit, Each capital debit. gaining C's partner capital debit to C's capital. I hope it is not going too fast. अभी आप जाके इसको अमाउंट लिखोगे इन योर कैपिटल अकाउंट. Basically, like this was the hard part of the sum, right? हार्ड पर क्या था इसमें भी? थोड़ा उल्टा फुल्टा था. हाँ, इंफॉर्मेशन उन्होंने यहाँ से वहाँ करके दिया था, कुछ भी. इट वॉज 11,475 राइट. Yes. खत्म झाला. आता काय करायचं? झाला. फिक्स जैसे हाँ भी देख लेंगे हम लोग. वेन एवर नेसेसरी. हाँ चले मालूम मेरे को. इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन आया
लैंड बिल्डिंग 2,25,000 एंड फर्नीचर 22,500 अब ये रिवैल्यूएशन हो जाएगा, है ना. 2,25,000 हम्म. 45,000 इसमें से माइनस करो. 11 to 50 नहीं समझे. समझो. डिफिकल्ट. नहीं, दो इफेक्ट्स भी दे दिया हम लोग ने. चला पुढे आता काय नेक्स्ट. हे झालं. हे पण झालं. Goodwill is not to be appearing in the books of accounts. हे पण झालं. Amount of C's estate is to be given an interest. So this is interesting. है? आपको इंटरेस्ट देने का है तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा टू इंटरेस्ट टू सीज एग्जीक्यूटर्स. आई डोंट नो व्हाट इज द इंटरेस्ट अमाउंट एज ऑफ नाउ बिकॉज जब तक हम लोग को अमाउंट कितना पे करना है नहीं मिलेगा तब तक ये अमाउंट नहीं मिल सकता. बट आई विल पास द एंट्री एंड कीप बिकॉज ये अगर नहीं रखूंगा ना मैं तो आई विल फॉरगेट इन द लास्ट. इज इट अ लायबिलिटी इफ आई हैव टू मेक द पेमेंट टू हिम. yes, देखो मैं आउटस्टैंडिंग interest to see. एग्जीक्यूटर्स कितना अमाउंट है एज ऑफ नाउ आई डोंट नो. आप भी पेंसिल से क्वेश्चन मार्क करके रखो ताकि एग्जाम में अगर कुछ ऐसा रहा तो आप मिस आउट ना कर लो. यू अंडरस्टैंड दिस. हाँ, फिर उसके बाद में क्या है द नेक्स्ट वन दैट वी हैव इज ए एंड बी इज टू बी टेकन. हाँ नाउ एवरीथिंग इज डन सर. नाउ जस्ट क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट. हेल्प मी आउट विद दिस. 33,750 डिवाइड बाय 10. 3,375 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 10,000 10,125 इंटू 4 मतलब खाली 4 इक्वल टू 13,500 नहीं समझा. 4:3 के रेशियो में डिवाइड कर दिया. ये रहा करंट अकाउंट. नहीं समझे. 13 श्योर. चलना पड़ेगा. सी का अकाउंट हम लोग जब तक नहीं आएगा तब तक ये नहीं क्लोज कर सकते. वी कैन क्लोज दिस ना. वी हैव टू कीप इट फॉर द लास्ट एडजस्टमेंट. आई गेस अपन वी कैन क्लोज द ओपनिंग बैलेंस. yes, जून टू जनवरी टू जून तो कर ही सकते हैं हम लोग बिकॉज उसमें तो कोई प्रॉफिट वॉफिट ऐसा हाँ, कोई मगजमारी नहीं था. इंटरेस्ट का मगजमारी नहीं था. सो 1,17,000 माइनस दीज थ्री अमाउंट करो. 1,75,000 हाँ 1,17,000 1,70,000 minus 13,500 6,750 88,650 88 650 बराबर अच्छा. ये तो तभी आएगा जब तक ये तो तब तक नहीं आएगा जब तक कि हमारा ये नहीं क्लियर करते हैं. कैन आई डिवाइड दिस 88,650 बिटवीन ऑल द थ्री पार्टनर्स. yes, कैन यू. 88,650 divided by 10 4
35,460. 35. 460. Okay. 26,595. Are you sure? जबरदस्त. नाउ मैंने रिवैल्यूएशन प्रॉफिट दे दिया, मैंने ये दे दिया, गुडविल दे दिया ना, मेरी चीजें सॉर्टेड हो गई है. ओके, कैन आई मेक द पेमेंट टू हिम? Yes. I can close my capital account ना and post it to the current. हाँ ठीक है, मुझे भी चलो. I am getting a balancing figure. 54 is bigger over here ना. माइनस करो तो बेटा. 54,000 minus 8,100 10 125 10, 125. minus 26,595. Minus 26,595. 9180. This amount I am going to transfer it to C's capital account. C's capital. How much? 9180. यहाँ पे लिखूंगा ये क्रेडिट है, यहाँ पे लिखूंगा C's current account. नहीं समझा? Now I have to close my C का capital account. Can you please take the calci? 135,000 plus 34,425 34,425. कितना आ रहा है? 16. 1,69,425. minus 9180. 9180. 1,60,245. नहीं समझा? समझा क्या नहीं? Can I say this is the amount payable to X? Sorry, C's executors. Yes. Is it liability for me? Yes. कितना अमाउंट बोला आपने मुझे? 1,68,245. These executors. कितना बोला? 1,60,245. नहीं समझा. Now on 1,60,245, can I charge the interest? Yes. 1,60,245 into 12% Yes. into 6 upon 12. 96. 9,614.7. 9615 लिखूं? हाँ. चलना रे नॉनसेंस. Will this be going on in the balance sheet? सेकेंड इफेक्ट करके यहाँ पे नहीं समझा. समझा. डिफिकल्टी? नहीं. ओके. हाँ, दिस इज डन. ये पेंडिंग है. हाँ. फिर इसको खत्म करना पड़ेगा ना सर. Yes. चलो करते हैं. ये क्या है इसको? नाउ 1 लाख, चलो करो कैलसी. 1,17,000 माइनस 13,500 माइनस 6,750 माइनस
9615 87,135 परफेक्ट है। ये होगा पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, एक्चुअली पार्टनर्स कैपिटल नहीं, पार्टनर्स करंट ना। ये तीनों तीन पार्टनर में बटा था। दो पार्टनर करो 86 1 डिवाइड बाय 2 करो, और फिर तुम्हारे सी पे ऐसा पूरा कैंसिल नहीं कर देना, ज्यादा सोच समझ के। डिवाइड बाय 2 कितना आ रहा आंसर? 43,567. नहीं समझा। 43 43,567. 67 एंड 43,568 ले लूंगा मैं। नाउ आई कैन क्लोज दिस अकाउंट ना। Yes. चलो करो, प्लस डायरेक्ट प्लस करना। 35,460 35,460 प्लस 13,500 13,500 प्लस 27,000 27,000. कितना? 1,19,527.5 फाइनल लिख दूँ मैं, माइनस 36,000 minus 36,000. कितना? 83,527.5. अबे फिर से 0.5 हाँ, 83,000। 527. हाँ, और इज्जत रखो अपना। करेक्ट है। So this will be going in the liability side today. Yes. कितना बोला आपने मुझे? एक का A का 83,527. गुड, 5.5 नहीं बोला अभी। चलो फिर से टाइप करो, 43,568 43,568 प्लस 26,595 plus 26,595 प्लस 10,125 plus 10,125 प्लस 13,500 plus 13,500 કેટલા? 93,788 7 minus 54,000 54,000 39,788. पक्का? चला पुढे, आता कॅपिटल बंद करायचं। चलो 1,12,500 1,12,500 minus 22,950 minus 89,550. चल रहे 89 550. 2,25,000 2,25,000 minus 11,475 11,475. 2,30,525. 213 हाँ 5 75. मेरे तो खेलता ना, मुझे बहुत गुस्सा आती है। 213,575 बराबर है। Yes. सर टैली होना चाहिए, नहीं तो पोपट हो जाएगा अपना। 39 नहीं, 89,550 ऐड करो। चलो 9 550 प्लस 213,575 135. So 3,03,075. है 213,575. 525 लिखा है 213,525. तुमने, 525 लिखा है सर, कैलसी यूज करना नहीं आ रहा तुमको। 213,575 मला करायला पाहिजे आता सर। आपने अगर दूसरे किसी में ऐसा गड़बड़ किया है ना बेटा, तो पूरा क्वेश्चन विल गो फॉर अ टॉस। हाँ 83 5 नहीं, वो मैंने ऑलरेडी कैरी किया था।
आपने यहाँ मैंने पे गलत लिखा है क्या? गलत लिखा है। चेक कर ले एक बार. हाँ 2,25,000 माइनस 11,475. 525 है, मैंने 75 लिखा है. मतलब आप करेक्ट हो ऐसा. ठीक है, कोई बात नहीं. ठीक है, कोई टेंशन नहीं है. 213,525. गुड सर. 3,03,000 आणि 83 करो इसको. 83,527 527 प्लस 339,788 1,23,300 प्लस 315 315. हाँ ओके. प्लस 3,03,000 3 लाख 075 हाँ 07 प्लस 1,60,245 प्लस 1 लाख 60 हाँ 245 1,60 1 लाख 6 1,60,245 प्लस 67,500 प्लस 67,500 प्लस 9,615 प्लस 9,615 6,63,750 750 हाँ माइनस 2,25,000 माइनस 2,25,000 माइनस 22,500 माइनस 22,500 माइनस 45,000. माइनस 45,000 आपको आंसर आना चाहिए 281 250. 371 1 लाख 1 लाख नहीं नहीं 90,000 का फर्क आ रहा है. कुछ अमाउंट लिखना भूल गए हम लोग. क्या मिस्टेक किया है? डिफरेंस तो आ रहा है. कुछ अमाउंट पोस्ट करना भूल गए हम लोग. कितने का डिफरेंस आ रहा है? 371 एंड 281. कितना डिफरेंस आ रहा है देखो तो. माइनस 281 90 90 का डिफरेंस आ रहा है. कुछ 90 का पोस्टिंग करना भूल गए हम लोग सर. या 1 लाख नहीं नहीं 90 आएगा. फिर बैंक अकाउंट रह गया रहेगा अरे बाबा जबरदस्त जिंदाबाद. यस सर. यू फॉरगॉट टू राइट द बैंक्स. मैं बोलते बोलते रह गया कि पूरा क्वेश्चन हो गया. वी डोंट हैव एनी कैश बैलेंस. सर इज टेलिंग एट 663,750. एंड आप अब भी बोल सकते हो हाश करके बिकॉज द क्वेश्चन इज डन. करेक्ट है सर. दिस इज द सीए फाउंडेशन का क्वेश्चन जून 2023 का. ब्यूटीफुल क्वेश्चन. दिस इज द सोल्यूशन. आप स्क्रीनशॉट ले लो. मैं आपको इसका ये भी भेज रहा हूँ. पीडीएफ भी है ना. वर्किंग नोट्स आर लाइक दिस. थोड़ा प्रेजेंटेशन मेरा यहाँ से वहाँ है. आपको बराबर से प्रेजेंटेशन करना है इसका. ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन.